دوستو امیجن کیجئے 30 انچ چوڑا ایک آئل کوٹڈ پائپ آپ کو بجلی کی سپیڈ سے اپنے اندر کھینچ لے تو کیسا ہوگا۔ یہ 5 ڈائیورز ایسی ہی ایک دل کو دہلا دینے والی سچویشن میں پھنس جاتے ہیں اور ان میں سے صرف ایک انسان زندہ بچتا ہے جو اپنی کہانی اس دنیا کو سناتا ہے، اور ایک گو پرو کا ایکشن کیمرہ جو ان میں سے ایک ڈائیور کے سوٹ کے اوپر لگا ہوا تھا وہ یہ ساری سچویشن کو ریکارڈ کر رہا تھا، اور اس کیمرے کے اندر موجود ویڈیوز آپ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے کرنے کے لیے کافی ہیں۔ 25 فروری سال 2022 ساؤتھ امریکہ کے ناردرن کوسٹ میں پوائنٹے پیئر نام کے ایک کوسٹل ٹاؤن میں LMCS کمپنی کے 5 ورکرز ایک پائپ لائن کے اندر مینٹیننس کا کام کر رہے تھے۔ ایک گورنمنٹ اونڈ کمپنی جو ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو میں موجود ہے، یہ لوگ اس پائپ لائن کے ایک ایسے حصے کے اندر کام کر رہے تھے جو بہت سالوں سے بند پڑا تھا۔ یہ ایک یو شیپ پائپ لائن تھا جس کے ایک حصے میں آئل ٹینکرز اپنے تیل کو ان لوڈ کرتے تھے۔ یہاں پر سارا کا سارا کچا تیل سٹور ہوتا تھا جسے برتھ 5 کہا جاتا تھا، اور یہ کچا تیل اس پائپ لائن کے تھرو برتھ 6 میں پہنچتا تھا جہاں پر آئل ریفائنری موجود تھی جو اس کچے تیل کو ریفائنڈ کر کے یوزیبل آئل میں کنورٹ کرتی تھی۔ اس دن ان لوگوں کا کام تھا کہ اس پائپ لائن کے اوپر والے حصے کو پانی سے سیپریٹ کرنا تاکہ یہ لوگ اپنے ایکوپمنٹس لے جا کر یہاں پر آرام سے کھڑے ہو کر کام کر سکیں۔ اس کے لیے انہوں نے ایک اسپیشل ہیبیٹیٹ بیل کو اس پائپ کے اوپر رکھا تاکہ سمندر کے اس حصے میں پانی کا لیول سمندر کے لیول سے تھوڑا سا نیچے آ سکے اور یہ لوگ یہاں پر آرام سے کھڑے ہو کر کام کر سکیں۔ یہ جو ہیبیٹیٹ نام کی مشین تھی یہ 8 فٹ بائی 8 فٹ کا ایک سکوئر سٹرکچر تھا جسے اس پائپ کے بالکل اوپر رکھا گیا تھا، اور پائپ کے اوپر کچھ اس طرح سے دکھنے والی ایک چیمبر بن گئی تھی جس کی مدد سے اب یہ لوگ یہاں پر ایز اے گروپ اس کے اندر جا سکتے تھے، جس کے اندر یہ لوگ بیٹھ کر اپنے ڈائیونگ گیئرز کو اتارنے کے بعد بھی آرام سے کام کر سکتے تھے۔ یہ لوگ اس سے پہلے بھی اس کام کو کئی 100 بار کر چکے تھے، لیکن اس بار جو ہونے والا تھا اس کے بارے میں ان میں سے کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ اس پائپ لائن کے اندر ایک اہم کام یہ تھا کہ ایک پلگ کو نکال کر سیپریٹ کرنا جو کہ صرف 2 ہفتے پہلے اس پائپ کے اندر انسرٹ کیا گیا تھا۔ یہ ایک ایئر ٹائٹ پلگ کی طرح کام کرتا تھا تاکہ پائپ لائن کے اندر سے ہائیڈرو کاربن باہر لیک نہ ہو سکے۔ یہ پلگ ایک ایئر ٹائٹ بیریئر کی طرح کام کرتا تھا جو کہ واٹر پریشر کو بیلنس کرتا تھا۔ تو اس چیمبر کو کھولنے کے لیے اوپر موجود ورکر اپنے دوست کو اسے کھولنے والا رینچ پاس آؤٹ کرتا ہے جس کی مدد سے اس کے بولٹس کو لوز کر کے اس چیمبر کو باہر نکالا جا سکتا تھا۔ جیسے ہی اس رینچ کی مدد سے اس کو کھولا گیا تو ایک ایسا سکشن فورس کریٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ 5 کے 5 ڈائیورز اس پانی کے بونڈر کے اندر پھنس کے اس پائپ لائن کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اب سارے کے سارے 5 کے 5 ورکرز اس وقت اس پائپ لائن کے اندر اپنے ایکوپمنٹس سمیت جا چکے تھے، اور یہ سارا معاملہ ان کے لیے اتنا ان ایکسپیکٹڈ تھا جس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ان میں سے کسی کو بھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور اتنی دیر میں وہ لوگ ریئلائز کرتے ہیں کہ ان کی قسمت تھوڑی سی اچھی تھی کیونکہ پائپ کے اندر ایک جگہ پر تھوڑی سی کرو موجود تھی جس کی وجہ سے ان لوگوں کو پائپ کے اندر سانس لینے کے لیے تھوڑی سی جگہ مل گئی تھی۔ ڈائیور کے سوٹ کے اندر جو کیمرہ موجود تھا اس کی مدد سے اس کی وجہ سے یہ سارا انسیڈنٹ ہونے سے چند منٹس پہلے کی فوٹیج دیکھی جا سکتی ہے، اور ٹھیک 3 سے 4 سیکنڈ کے بعد اسکرین پر صرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا ہے۔ اب اگلے فوٹیج میں ان لوگوں کے ہلچل کرنے کی اور چیخنے چلانے کی آوازیں صرف آوازیں ہی سنی جا سکتی ہیں۔ یہ لوگ ایک دوسرے کو آپس میں اپنے نام سے بلاتے ہیں اور پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا سب لوگ ٹھیک ہیں یا نہیں۔ اب یہاں پر ایک اور خوفناک سچ یہ تھا کہ جس ہوا میں یہ لوگ ابھی پائپ لائن کے اندر سانس لے رہے تھے اسی ہوا کی وجہ سے ایک پانی کا ایسا ٹورنیڈو بنا جس نے انہیں اس پائپ لائن کے اندر کھینچ لیا تھا۔ کچے تیل، پانی اور ہوا سے چلنے والا یہ کھچاؤ پورے 90 سیکنڈز تک چلتا رہتا ہے، یعنی کہ پورے 1.5 منٹ تک، اور جب پانی اور ہوا کا پریشر سیٹل ہوتا ہے تو یہ لوگ ایک ایسی جگہ پر آ کر رک جاتے ہیں جس جگہ پر آ کر اب یہ لوگ سانس لے سکتے تھے۔ ان میں سے جو ایک سروائیور اکیلا بچا تھا وہ اپنے ایک انٹرویو میں بتاتا ہے
for too long, after a while, your body, your lungs just fight. Your airways close, you see a noise. Your body suffering to pull air. An unbelievable nightmare. Your eyes burning. Every time you try to open your eyes, it's burning. You're pitch black, you can't see nothing. Your throat burning. Your ears ringing. Your body sore. And at that point, I tell myself I was gonna die. और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि ये पांचों के पांचों लोग 1200 फीट लंबी इस पाइपलाइन के अंदर पूरी तरह से फंस चुके थे। ये सारे के सारे लोग जख्मी थे। घबराहट और थकावट के बावजूद ये लोग एक दूसरे को आवाज़ देते हैं ताकि जिंदा बच पाने की हिम्मत को ये लोग एक दूसरे को पुकार के जिंदा रख सकें। लेकिन इस सारी सिचुएशन के बीच में जिंदा रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। जैसे तैसे करके आपस में बातचीत करने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग एक दूसरे को खींचते हुए आगे बर्थ 6 की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन ये पूरी की पूरी जो पाइपलाइन थी ये गाढ़े कच्चे तेल के दलदल से भरी हुई थी और कई घंटों तक मुशक्कत करने के बावजूद सिर्फ चंद इंच आगे बढ़ना ही पॉसिबल हो पाया था। टूटी हुई हड्डियां, नाक और आंखों में कच्चे ऑयल की वजह से होने वाली जलन और इसी के साथ साथ काला घना अंधेरा और साथ ही साथ सांस लेने में मुश्किल। बिल्कुल ऐसे था जैसे ये लोग जहन्नुम में आ चुके हों। तकरीबन 1 घंटे तक जद्दोजहद करने के बाद इनके सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे पाइपलाइन में मौजूद पानी का लेवल भी बढ़ता रहता है और आगे चलते हुए वर्कर को महसूस होता है कि अब उसके सांस लेने के लिए सिर्फ 6 इंच की जगह ही बची है और अब यहाँ से आगे नहीं जाया जा सकता। और पीछे के मौजूद दोनों वर्कर्स बहुत ज़्यादा बुरी तरह से जख्मी थे और पूरी तरह से थक चुके थे और वो अपनी सांस भी बहुत मुश्किल से ले पा रहे थे। क्रिस और काजिम नामी दोनों वर्कर्स इस पाइपलाइन के अंदर आगे रेंगते हुए पूरी टीम को लीड कर रहे थे और ऋषि और फैजल नाम के दोनों वर्कर्स सबसे लास्ट पर पीछे मौजूद थे। और उस सिचुएशन में इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये दोनों आगे वाले वर्कर्स अपनी सांस को रोक कर आगे बढ़ेंगे और ये दोनों यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे। और इन्होंने अपने साथियों से वादा किया कि वो लोग आगे बढ़ने के बाद यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे और वो इन बाकी 3 साथियों के लिए मदद लेकर वापस जरूर आएंगे। और प्लान के मुताबिक ये दोनों अपने फेस को पूरी तरह से ऊपर करके आगे बढ़ते रहते हैं और उसके बाद सांस रोक कर आगे की तरफ पानी में बढ़ते रहते हैं और थोड़ी ही दूर स्विम करते हुए ये लोग आगे एक दूसरे पैसेज में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर इन्हें दोबारा से अपनी सांस लेने के लिए थोड़ी सी जगह और मौका मिल जाता है। और ये जगह राइजर पाइप से थोड़ी ही दूरी पर मौजूद थी। राइजर पाइप वो पाइप था जिसकी मदद से या जहां से ये लोग बाहर निकल सकते थे। जाते हुए इन्हें रास्ते में 2 ऑक्सीजन के टैंक्स भी मिलते हैं जो इनके साथ ही इस पाइपलाइन के अंदर खींच के आ गए थे और अब इन्हें ऐसे लग रहा था जैसे इनको इसी की जरूरत थी। और अब ये दोनों इन दोनों ऑक्सीजन टैंक्स को यूज करते हुए इस टनल के अगले सेक्शन में पहुंच जाते हैं। लेकिन इनमें से एक काजिम नाम का डाइवर, उसकी हालत अब बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल से अब आगे बढ़ पा रहा था। और इन्होंने अब ये डिसाइड किया कि इनके पास जितना भी बचा खुचा ऑक्सीजन है उसी की मदद से क्रिस आगे बढ़ेगा और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा और यहाँ पर फंसे हुए बाकी 4 साथियों के लिए मदद लेकर आएगा। जो सबसे आगे वाला साथी, सबसे आगे वाला डाइवर क्रिस इस टैंक को अपने आगे प्लेस करता है और स्विम करते हुए एक 2 फीट चौड़े पाइप के अंदर आगे बढ़ता रहता है। लेकिन उसके दिल और दिमाग में अभी भी एक डर था कि क्या हो अगर ये आगे वाला सेक्शन बर्थ 5 हो। लगभग 50 फीट स्विमिंग करने के बाद अब वो ऊपर पहुंच चुका था और उसके ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन भी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और अगर ये सेक्शन बर्थ 5 होता तो यहाँ पर इसकी मौत भी तय थी। अब जैसे तैसे करके उसने अपने आप को पुश करते हुए पिछले 2 घंटे से स्विम करते करते क्रिस अब फाइनली ऊपर खुली हवा में पहुंच जाता है और वो बर्थ 6
के ऑयली वाटर के सरफेस के ऊपर सक्सेसफुली पहुंच चुका था। उसने ऊपर पहुंचते ही जोर जोर से पाइपलाइन की दीवारों को हिट करना शुरू किया और अपनी बची खुची बाकी की एनर्जी को लगाते हुए शिप में मौजूद बाकी क्रू मेंबर्स को बुलाने की पूरी कोशिश की। यहाँ ऊपर शिप में मौजूद क्रू मेंबर्स में से एक मेंबर ने उसकी आवाज सुनी और उसे सक्सेसफुली बाहर रेस्क्यू कर लिया जाता है। क्रिस ने बाहर आने के बाद बताया कि पाइपलाइन के अंदर अभी भी 4 लोग फंसे हुए हैं और यहाँ पर अब तक सारे क्रू मेंबर्स इस बात पर बहस कर रहे थे कि पूरी की पूरी पाइपलाइन तो ऑयल से भरी हुई है और जो लोग अंदर फंसे हुए हैं ये लोग अब तक तो डूब के मर चुके होंगे और जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स इनके पास मौजूद हैं उनकी मदद से सिर्फ 1 घंटे तक ही सांस लेना पॉसिबल था। लेकिन जब क्रिस बाहर आता है तो अब पूरे के पूरे क्रू मेंबर्स को भी एक उम्मीद नजर आने लगती है। क्रिस के मुंह से ये पूरा वाकया सुनने के बाद क्रू मेंबर्स पानी में उतरते हैं और इस पाइपलाइन की अलग अलग जगह पर टैप करते हुए जाते हैं ताकि पाइपलाइन के अंदर फंसे हुए क्रू मेंबर्स अपनी लोकेशन बता सकें और फाइनली वो लोग भी अंदर से टैप करके अपनी लोकेशन बता देते हैं और पाइपलाइन के अंदर फंसे हुए ये लोग जो अभी तक अपनी सारी की सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे, अपनी जिंदगी अपनी तरफ से हार चुके थे, उनको जैसे एक नई जिंदगी की उम्मीद नजर आने लगती है। अब उनको इस बात का पता चल चुका था कि बाहर मौजूद क्रू मेंबर्स को उनके अंदर फंसे होने की खबर मिल चुकी है और अब वो उनकी मदद के लिए पहुंच गए हैं और इनको इस बात का भी पता था कि प्रोफेशनल डाइवर्स और हर तरह के इक्विपमेंट्स बाहर शिप के अंदर मौजूद हैं जिनकी मदद से इनकी जान को बचाया जा सकता है। ऑक्सीजन टैंक्स, रस्सी, लाइट्स और हर तरह की हेल्प। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है और ये लोग अंदर बैठे इंतजार करते रहते हैं कि बाहर से कोई इनकी मदद के लिए अंदर आएगा या इन्हें किसी तरह का कोई ऑक्सीजन सिलेंडर आने की आवाज सुनाई देगी और कोई ना कोई इन्हें बचाने जरूर आ जाएगा। लेकिन अफसोस कि ना ही इन्हें कोई लाइट अपनी तरफ आती हुई नजर आती है और ना ही इन्हें किसी सिलेंडर की आवाज़ सुनाई देती है और ना कोई अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। अंदर फंसे हुए ये लोग ना सिर्फ जख्मी थे बल्कि अब अंदर मौजूद ऑयल वाली हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। हर गुजरते हुए घंटे के साथ अंदर मौजूद जितनी भी हवा की लिमिटेड क्वांटिटी मौजूद थी उससे ज्यादा तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा के अंदर घुल रही थी, जिसकी वजह से अब इनके लिए सांस लेना अब पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक मदद का इंतजार किया, लेकिन अफसोस कि आखिर तक उनको बचाने कोई भी नहीं आ सका। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि LMCS, पैराफ्यूल और कोस्ट गार्ड्स इनमें से कोई भी उन्हें बचाने के लिए क्यों नहीं आया। कुछ लोगों के मुताबिक ये कंपनी अपने बाकी डाइवर्स को पाइपलाइन के अंदर भेजकर उनकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहते थे और कंपनी के मुताबिक इन्हें जल्दी से जल्दी बाहर निकालना, वो भी बगैर किसी दूसरे डाइवर्स के, बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और इस सारी सिचुएशन में दूसरे डाइवर्स की जान भी जा सकती थी। और कुछ लोगों का तो ये कहना है कि अंदर फंसे हुए इंसान पहले से ही मर चुके थे और उन्हें अंदर से किसी और चीज की आवाज आ रही थी। कोस्ट गार्ड्स, LMCS के क्रू मेंबर्स और उनके फैमिली मेंबर्स सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट जो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता वो ये कि जब क्रिस को बाहर निकाला गया तो उस वक्त बाकी के 4 डाइवर्स पाइपलाइन के अंदर जिंदा थे और कई दूसरे डाइवर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने 48 घंटे तक पाइप के अंदर से टैपिंग की आवाज़ को सुना था। और जब इनकी बॉडीज को बाहर निकाला गया और उन्हें ऑटोप्सी के लिए भेजा गया तब ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि ये चारों डाइवर्स सैटरडे तक जिंदा बचे हुए थे और उनमें से कुछ तो 2 दिन और ज्यादा यानी कि मंडे तक जिंदा थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।